Good afternoon, students. I am Avik Kumaranu, your English teacher. So let's start the next chapter of your grammar section, that is nouns and gender. So nouns and gender is the next chapter of your grammar. Okay, so let's start. A noun that refers to a male is said to be of the masculine gender. So what is masculine gender? Masculine gender refers to a male. Okay, example: boy, father, lion are the example of masculine gender. Number two, a noun that refers to a female is said to be the feminine gender. So, feminine gender refers to the female character, that is girl, mother, lioness. Okay, the next is common gender. What is common gender? The common gender, a noun that can refer to both a male and a female, is said to be the common gender. So, what is common gender? Common gender refers to both a male and a female. मतलब common gender, we cannot identify it. Either it can be a male or female. Okay. So the examples of baby, cousin, friend. Okay. Next is a noun that refers to a living, non-living thing is said to neuter gender. Neuter gender refers to the non-living thing. Neuter gender refers to the non-living things. That means toy, chair, mountain. Okay. So common gender and neuter gender quite similarity and have the similarity um, between the common noun and the material noun. Okay, this is the similarity. Okay, this is the four gender, that is, one is masculine, second is feminine, the third is common, and the last one and the fourth is neuter. So we have to write down this four gender, definition of four gender and their examples in your copy. That will be your homework. तो तुम्हें इस चारों जेंडर के बारे में अपने अपने कॉपी पे लिखना है और उसका एग्जाम्पल्स देना है. मतलब इस बॉक्स को इसको इस चारों को लिखना है, अपने अपने कॉपी पे लिखना है. सभी लिखोगे. ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स शुड राइट दिस सेक्शन. सब स्टूडेंट्स लिखोगे, इस चार जेंडर के बारे में लिखोगे और उसका एग्जाम्पल लिखोगे. ठीक है. अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है? सॉल्व पोर्शन. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड योर एक्सरसाइज. तो दिस इज द सॉल्व पोर्शन. यू हैव टू underline the nouns and put the proper nouns in the given boxes. So you have to underline first in these sentences. Okay, then you have to write down those nouns in the respective boxes. That means that noun should be masculine, feminine, common, or the neuter gender. So you have to just underline those proper nouns at first. Then you have to write down those proper nouns in the respective gender. That means those proper nouns can be a masculine gender, can be the feminine gender, can be the common gender, or can be the neuter gender. So that's why I have just solved all the portions. I have solved the all portions. Just check it out. Okay, just check it out. Okay, you have to just write down in your book. If you have no book, so you have to write down in copy. लेकिन जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैंने बताया था पहले लिखने के लिए चारों जेंडर का, वो सब स्टूडेंट्स को लिखना है. सब, ऑल स्टूडेंट्स. जिसके पास होगा या नहीं होगा पता नहीं, सब स्टूडेंट्स अपने अपने कॉपी पे वो चारों डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखेगा. और नेक्स्ट जो सॉल्व वाला पोर्शन, एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, जिसके पास बुक है वो बुक पे लिखेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो
कॉपी पे लिखेगा. अंडरस्टैंड? सो द नेक्स्ट इज you have to just learn the next chapter, the study the masculine and the feminine. मतलब तुम्हें स्टडी करना है कौन सा अगर मैस्कुलिन हुआ तो उसका फेमिनाइन क्या होगा. सो द फर्स्ट वन इज मॉन्क. मॉन्क इज द मैस्कुलिन, सो फेमिनाइन इज नन. शेफर्ड इज मैस्कुलिन, so feminine is shepherdess. Emperor is the masculine, so empress is feminine. Ram, not Ram, it's Ram. Ram is masculine, you is feminine. Waiter is masculine, waitress is feminine. Wizard is masculine, witch is feminine. Gander, gander is masculine, goose is feminine. Drake is masculine, duck is feminine. Deer is masculine, so doe is feminine. Bridegroom is masculine and feminine is bride. Masculine fox and feminine vixen. Masculine brother-in-law, feminine sister-in-law. So, okay, so you have to just read this section. तुम्हें ये सेक्शन रीड करना है. उसके बाद एक बॉक्स है, से अपने अपने बॉक्स बुक में है तो बुक में जस्ट देख लेना, फिल कर लेना अपने हिसाब से बुक में. अक्रॉस मतलब ऊपर नीच करके, और सॉरी अक्रॉस मतलब साइड बाय साइड, एंड डाउन मतलब ऊपर नीच, तो करके बॉक्स फिल कर लेना. और जिसके पास बुक नहीं है वो इस कॉपी पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड? ओके. सो एक इधर मैंने एक गलती कर दिया, एफ ओ नहीं होगा डो होगा, एफ के जगह यहाँ पे डी होगा, तो यह मैंने गलती कर दिया, या डी होगा डी. ठीक है, फो नहीं होगा, एफ ओ ई नहीं होगा, डो होगा डी ओ ई. ठीक है, यह मैंने गलती कर दिया, सो इसको मत लिखो. एफ के जगह यहाँ पे डी होगा डी. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रिप्लेस द नाउन प्रिंटेड रेड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर. मतलब जो सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में देखोगे लाल कलर की अंडरलाइन या कुछ वर्ड्स है, तो उसी वर्ड के तुम्हें ट्रांसफर करना है द ऑपोजिट जेंडर में. अगर मैस्कुलिन हुआ तो फेमिनाइन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर फेमिनाइन हुआ तो उसको मैस्कुलिन में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू डू से दैट, यू हैव टू सी दैट माय सिस्टर इज very talented actor. So here the sister is the red color. So you have to transfer the sister in the masculine form. So क्या होगा, sister का brother होगा. ठीक है, the my brother is a very talented actor, तो sister का brother हो गया. The next देखो, next is the boy played the role of the king. तो यहाँ पे दो, एक boy रेड है एक किंग रेड है, तो बॉय का क्या होगा गर्ल हो जाएगा, और किंग का क्या हो जाएगा क्वीन हो जाएगा, और सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा. नेक्स्ट, दिस काउ बिलोंग्स टू माई आंट. तो काउ का मैस्कुलिन, काउ का ऑपोजिट जेंडर, यहाँ काउ क्या है मैस्कुलिन फेमिनाइन है, तो काउ का मैस्कुलिन बुल होगा, और आंट का मैस्कुलिन क्या होगा ऑपोजिट जेंडर अंकल होगा. ठीक है. यहाँ पे देखो नंबर 4, प्रिंसेस फेल ऑफ द हॉर्स. तो प्रिंसेस का ऑपोजिट क्या होगा प्रिंस, और हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर. यहाँ पे जेंडर बोला मेयर. तुम अक्सर गलती करते हो जेंडर और नंबर में, मतलब सिंगुलर प्लूरल और मैस्कुलिन फेमिनाइन में तुम लोग गलती कर देते हो. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न अबाउट द फैक्ट व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज जेंडर. जेंडर क्या होता है, जेंडर होता है ऑपोजिट जेंडर, मतलब मैस्कुलिन फेमिनाइन, मतलब मेल फीमेल होता है जेंडर में. लेकिन सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक एंड प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. सो यू हैव टू केयर अबाउट दैट. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हो नंबर एंड जेंडर में, सो बी केयरफुल. सो नंबर 5 गर्ल्स एंड वुमेन्स है, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा ऑपोजिट बॉयज हो जाएगा, एंड वुमेन्स का हो जाएगा मेंस हो जाएगा. नंबर 6 शेफर्ड का सेफर्डेस हो जाएगा, विजर्ड का विच हो जाएगा, बॉयज का गर्ल्स होगा, लायन का लायनेस होगा. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, तो मैंने पहले क्या कहा था, ठीक है मैं बाद में बोलता हूँ. एंड द नेक्स्ट इज नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल नाउन्स दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स. मतलब कौन सा यू हैव टू चूज द राइट प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब तुम्हें देखना है कौन सा जेंडर यहाँ पे बैठेगा, मैस्कुलिन होगा या फेमिनाइन होगा. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड.
masculine or feminine. So write down the proper word. Okay. So we saw a waitress होगा. क्यों? Waitress is the feminine gender because here is her is there. The vixen, that is vixen at the कौन जन्म देता है? तो एक फेमिनाइन ही देता है ना, मैस्कुलिन तो नहीं देगा. तो फेमिनाइन क्या होगा? फॉक्स का फेमिनाइन होता है विक्सन. ठीक है. सो देखो यहाँ पे भी देखो, लेड और एग्स कौन देता है एग्स? नहीं, ड्रेक तो नहीं देखा क्योंकि ड्रेक मैस्कुलिन है, सो डाक होगा. ऋतु सिस्टर हस्बैंड इज हर ब्रदर इन लॉ होगा. एक बार समझ लो. द टाइगर्स लिक्ड हार्ड काब्स. हार्ड मतलब किसी को समझ रहा है, टाइगर को नहीं, क्योंकि टाइगर तो मैस्कुलिन है, सो टाइग्रेस होगा. सो सेफर्ड इज, यहाँ पे नन्स मॉन्क्स विच. सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट सेक्शन. ठीक है, मैंने सब सॉल्व कर दिया. सो मैंने वंस अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट जिसके पास बुक है या नहीं है, जिसके पास बुक है या नहीं है, दोनों को ये चारों जेंडर के बारे में लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है कॉपी पे. मतलब जो जिसके पास बुक है या नहीं है, दोनों को ही लिखना है. और जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किया अभी अभी, और जिसके पास बुक है वो अपने बुक पे सॉल्व करेगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे लिख के दिखाएगा. ठीक है. और ये बॉक्स करने की कोई जरूरत नहीं है कॉपी पे, बुक पे करना है. ठीक है, ये बॉक्स बुक पे करना है और ये लर्न करना है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.